हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो तुम लोगों के लिए वापस लेकर आए हूं बहुत ही बढ़िया एक कैपेसिटर का वीडियो मास्टर क्लास होने वाला है ये वाला। यू पीपल ऑल नो दैट आई वाज नॉट मेकिंग वीडियो फॉर द सिंस अ लॉन्ग टाइम। आई वाज वेरी बिजी विद एन असाइनमेंट। सो टुडे एक धमाका होगा, बहुत वेरी 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 इंटरेस्टिंग वेरी सुपरलेटिव वीडियो लेकर आए हैं कैपेसिटर का। इफ यू हैव पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड द एंटायर कैपेसिटर or have watched multiple videos of capacitor and still cannot solve questions or still getting stuck in PYQs, so definitely this is going to be great help। एकदम बारीकी डिटेल से एकदम स्टार्ट से बताएंगे किस तरीके से क्या होता है, फील ला देंगे, पूरा विजुअलाइज करवा देंगे, सारे के सारे फॉर्मूलाज भी डिराइव कराएंगे ऑफ कैपेसिटर, बेसिक कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, फिर मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है, पूरा सीरीज पैरेलल सारे के सारे कॉम्बिनेशंस का सारा फॉर्मूला डिराइव करवा के करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एकदम एकदम अंत तक जुड़े रहो। नीट जेई सीबीएसई का पीवाईक्यूज भी करवाएंगे पूरा के पूरा। ठीक है, तो ये चलते हैं एकदम फटाक से पहले वाला स्लाइड में। That's it, here we go. So the very first thing is we need to understand the introduction to capacitor. So what is a capacitor? इससे पहले बोल देते हैं what is its use. Okay, so you will understand this is a device which is used to store charge in a circuit. Okay, this is a device which is used to store charge in a circuit. Device. Okay, wait. Electrical device which stores charge in a circuit. That's it. Okay, got my point? They store charge in a circuit. Okay, that's my point. Okay, that's the basic thing. So what you can say here is like this is more like of a, like this is capacitor is more like of a electrical tank. Okay, this is more like of a example, or like a electrical tank. We know what water tank is, it's electrical tank. Okay, so see, my point is I will get you get to the point. Everybody will understand these things. Check it out, guys. Wait on, let's change the pen a little bit. Yeah, wait. So battery, what does battery do is equal to source. Okay, battery is nothing but it's the source, but our capacitor is equal to tank which stores charge. Tank which stores charge. That's it. Simple as that. That's it. That's my point. You got everything? Understood? Clear? 100%. This is nothing but this gives us the supply of the charge. This is something which stores the charge, like a supply of water and your water tank as your in your house stock. Okay, that's the point. So यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं. So what are the use of a capacitor? You will understand this one very well. Like see, capacitor is used in all the sophisticated modern day device like mobile, laptops, smart boards, this kind of interactive panels, TVs, all these digital items, your semiconductor device, everywhere it's used. See, it's written very well. Wi-Fi routers, chargers, smartwatches, etc., etc. There are a lot of use of capacitor. So it's very, very, very important device. We have to learn it very well because you people all are going to be either computer engineers or electronic telecommunication engineers or electrical engineers. Your life or your world will surround these things. You will be working with all these things. Your working ground or your working place will be these things. Okay, so very interesting thing. You should learn all these things in it. Like more, you should give more concentration on this particular topic so that your life becomes very easy and you can understand things. So basic thing, it's a device which stores electrical charge. That's it. Okay, that's it. So now let's go to the next point. Here we go. So what is this anatomy of a capacitor? Like let's understand the details of a capacitor. So these are the two plates. Okay, these are the two plates of a capacitor. This is the two plates. Okay, number one plate, number two plate. Okay, this is plus V, positive charge is present over here. You can check it out. Okay, this is the positive charge plate. Okay, plus V charge. So this is first plate. Let's like write like this way. Okay, let's write. This is the first plate. Okay, let's write like this. First plate, and this is the second plate. Okay, metal plates. Simple, metal plates. Okay, simple as that. What are these dotted lines? This is nothing but the electric field generated between these two plates. This is nothing but electric field generated between the plates.
the plates. Obviously, charge will definitely generate an electric field. This is nothing but the electric field. And what is this? This is beta, this is your battery. This is nothing but your battery. Okay. And this is the circuit. That's it. So these are two metal plates kept at a very small distance where electric field gets generated. Where electric field gets generated. Here electrical energy operates. Here electrical energy operates and field looks like this only. Okay, that's my point. So how will be the circuit diagram of a capacitor? The circuit diagram of a capacitor will look like this. We will draw like this one, these are the two plates, and this is it. Okay, these are the two plates. These are the two plates. Plate number 1, P1, this is P2. Okay, P2. Okay, fine, P2. And what is the area of these plates? We will tell that A is equal to area of the plates. Area of the plates. Okay. Okay, and this, there we have got a distance between two plates. We'll take this one also. This is what, sir? This is D. This is distance between two plates. Okay, distance between two plates. Two plates. Fine. Okay, sir. Very easy. This is the geometry of the capacitor. Okay, this is the geometry of the capacitor. Fine, fair enough, good to go. So this is the area. This is plate number 1, plate number 2. Okay, now we have to write something. So net charge of a capacitor. Net charge. Let's not do it over here, let's do it in the next page. Okay, let's do it in the next page while we give the charging of the capacitor. This is the anatomy, you have understood. This is what we call this one as PPC, parallel plate capacitor. We are understanding everything. What are parallel plate capacitor, what are the different types of capacitor present, we will understand everything. Just hold on a bit. This is called a parallel plate capacitor, where we have got two metal plates which is fixed at a separate distance, very small separated distance. Okay, that's it, like this one. And you have seen this one, like this is the capacitor. Like over there we have arranged it in this particular way, in a vertical way. Here we have arranged it in a horizontal way. This is a horizontal way we have arranged it. Okay, fine, fair enough, good to go. चलो आगे चलते हैं. आगे चल के हम लोग क्या सीखेंगे? चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. चार्जिंग कैसे होता है? देखो पहला पॉइंट पे क्या होता है, ऑब्वियसली आवर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर विल हैपन लाइक इन दिस पर्टिकुलर वे. व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी is connected, charging starts. Okay, how charging occurs? When battery is connected with a capacitor, what happens? Battery starts pulling electrons from a plate of a capacitor. So battery will start. Okay, this battery will start pulling. It starts pulling electrons from one plate of a capacitor and then pushes it. Understand the thing? Pushes it into the another plate, into the other plate of a capacitor. Getting my point? See, whenever you pull out the electrons, here you are pulling out the electrons. So pulling out will make us, obviously electrons is getting deficited. Obviously from the plate where the electrons have been pulled out, what will happen? There is an electron deficit, therefore this body will get plus Q charge. Okay, this body will definitely get what kind of charge? Plus Q. And whenever it's been pushed, where electrons have been pushed, therefore there will have an excess of charge, so this will be plus Q. Okay, so we can write all these things. Okay, right guys, see here, deficit of charge, deficit of electrons. Okay, that is how a body gets charged. यहाँ पर deficit बन गया और यहाँ पे क्या हो गया? excess of electrons. excess of electrons है ना? तो excess of electrons बना तो तुम्हारा बन गया positive charge और यहाँ पे deficit charge. तो one plate, ये दोबारा मैंने दोनों ही जगह पे प्लस प्लस लिख दिया. यहाँ पे excess हो जाएगा तो of course it will be minus. Okay guys, it will be minus. Okay fine. So यहाँ पे क्या है? ये मान लेते P1 प्लेट 1, ये मान लेते P2 हम लोग. ठीक है, बढ़िया. ये बात हुआ कैपेसिटर का चार्जिंग का. थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे दिखा देते हैं. ठीक है बेटा, देख लो क्या होता है. ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज लाइक इफ बैटरी इज बीन कनेक्टेड, so battery will pull out some charge. Okay, here is the battery, let's say. So obviously it will pull some charge out. यहाँ से pull out charge करेगा. Obviously this will be minus Q और यहाँ पे this will be plus Q. That's it. That's the charge. Okay. So now what happens is, obviously it's not necessary. You need not draw all these things. चलो सीख लो सिर्फ. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया.
तो चार्जिंग हो गया। चार्जिंग कब रुकेगा, नंबर 2 पॉइंट, चार्जिंग कब रुकेगा, और नंबर 3 पॉइंट की चार्जिंग रुकने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारी चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे ना थोड़ा, हाँ, तो ये वाला हो गया हम लोगों का। तो अभी देखो बेटा, सो द नेट चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर, लेट्स सी, नेट चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर, नेट चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर is always equal to zero. Why sir? Why? It's always equal to zero. Q plus of minus Q. Okay. So you take this plus Q minus Q, it becomes zero. Fine, fair enough. You got my point. This is it. So it's equal to zero. Fine. But however, whenever we talk about the charge of a capacitor, when we talk about the charge of a capacitor, but when we talk about the charge of a capacitor, we mean the magnitude of charge in either of its plates, charge in either of its plates। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, सीख जाओगे ना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। इन आइदर ऑफ इट्स प्लेट्स, छोटा छोटा चीज सीख जाओगे तो बहुत काम आ जाएगा। जीरो है नेट चार्ज, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी ऐड होकर जीरो बन जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली क्यू होगा, प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ क्यू होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इट विल बी क्यू ओनली, ठीक है, यही बात को बोलते हैं। ये वाला सीख लिया। तो व्हेन द चार्जिंग इज गोइंग टू स्टॉप, सी whenever we are charging a capacitor, what will happen is the charging will also stop. Wait, कौन सा कलर चेंज हुआ यहाँ पे, ये वाला कलर नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। हाँ चलो, the charging stops when, see, understand the point, the V of the capacitor should be equal to V of the battery or terminus voltage of the battery, okay। बैटरी, ये क्या होता है, टर्मिनस वोल्टेज। जब इसका टीवी नहीं, टेलीविजन नहीं, टर्मिनस वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ओके। जब कैपेसिटर का पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल टर्मिनस वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल हो जाएगा, चार्जिंग विल स्टॉप। क्यों सर, वाई, ये थोड़ा सा देख लो बेटा, होता है क्या है, when we charge a capacitor। अच्छा, ये बात तो यहां तक समझ लो, नेक्स्ट पेज पे पढ़ाते हैं, ये बात यहां तक समझ लो, नेक्स्ट पेज में समझाते हैं, ठीक है। ये बात को यहां तक समझ लो, नेक्स्ट पेज में जाके बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैपेसिटर। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। चलो यहां पर ये वाला ले लेते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, पेन्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला पे व्हाइट ले लिया। चलो, तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, व्हेन वी आर चार्जिंग। सो पॉइंट नंबर 1, while charging, we know now from the basic of electrostatics or basic of electric charges and fields that what is this, Q is directly proportional to V, okay। The Q of the capacitor, okay, of the capacitor is directly proportional to the charging हो रहा है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का दोनों चीज बराबर, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज द प्रॉपर्टी। तो फाइन, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और वी कैन से Q इज इक्वल टू C इनटू V, वेयर C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, C इज PROP, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, CONST। इसको कैपेसिटी बोल सकते हैं। C इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, COND, कंडक्टर। ये मतलब क्या हुआ सर, ये हुआ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। पूरा समझ जाओगे, पूरा के सारे चीज, द एबिलिटी, सोचो एक एक चीज लिखा रहे, एबिलिटी एकदम बारीकी का डिटेल्स बोल रहे हैं, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या है, ऑब्वियसली चार्ज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स इफ दिस गोज अप दिस विल आल्सो गो अप, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, चार्जिंग रुक जाएगा जब ये इक्वल टू
हम लोग का क्या बन जाता है, बैटरी का टर्मिनस पोटेंशियल, टर्मिनस वोल्टेज बन जाएगा तो ऑब्वियसली चार्जिंग रुक जाएगा। दैट इज द पॉइंट वेयर चार्जिंग स्टॉप्स इन ए कैपेसिटर। ठीक है, दैट्स इट। तो हो गया बात खत्म। तो अभी बात को बनाते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। तो अभी यहां से सारे के सारे फॉर्मूलास खोल के निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या हो गया, ये वाला हमारा फॉर्मूला आ गया। रुक जाओ एक सेकंड, हम करके देते हैं तुमको, बहुत ही बढ़िया लगेगा। दैट्स इट बेटा। तो ये वाला तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला हो गया, दिस वन। तो यहां से तुम घुमा के थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो, क्या, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, क्यू बाई वी तो हो गया तुम्हारा, लेकिन बात तुम बोलोगे कि सर वेन एवर वी इंक्रीज, इफ Q is increased, what happens to the capacitance of the capacitor? What if Q or the charge of a capacitor is increased? What happens to the charge? What happens to the capacitance of the capacitor? Very interesting point. Get it over here. Very, very, very interesting. Check it out. So क्या होगा if this happens? Okay, what happens is, understand the point, guys. Understand it. This is very important. Okay. So what happens? See, capacitance is independent of दो Q and V। बोलोगे सर अभी तो आपने फॉर्मूला करवाया कि अभी आपने करवाया ये वाला फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q इंटू V, ये बात तो है सर, अभी आपने बताया, अभी उल्टा लिखा मैंने, क्यों उल्टा लिख दिया मैंने, C इज इक्वल टू, अरे लिख जा रहा है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो अभी सर आपने करवाया C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तब यहां से काहे इंडिपेंडेंट काहे हो गया, है ना? तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है बोल रहे हो, मगर मैं बोल रहा हूं, आंसर दे रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, देखो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये इंडिपेंडेंट काहे है, क्योंकि ऑब्वियसली सी द पॉइंट इज आई एम टेलिंग यू गाइस, चेक इट आउट, wait, I have to change all this pens. Okay, see, why independent? Why? Obviously you have to know this answers. Okay, so as C capacitance is independent Q, क्योंकि Q is directly proportional to V, so as Q goes up, V also goes up, therefore the ratio of Q by V in a capacitor is always constant. In a capacitor is always constant. Okay, ये बढ़िया सा कांस्टेंट रहता है। तो ऑफ कोर्स यहां पे मान लो ये रेशियो होता है, तो रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, CAP, कैपेसिटेंस। सो C इज इंडिपेंडेंट, हमेशा इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वन, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है बेटा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। इसके ऊपर जो भी काम करो, लाइक इसको बढ़ाओ इसको घटाओ, जो भी करो एक साथ, दोनों ही एक साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसको कम करो तो ये भी कम हो जाएगा, इसको बढ़ाओ तो ये भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली यू डू एनी वाइस वर्सा थिंग, इट विल get reflected, and ultimately the ratio is going to stay constant, and capacitance therefore it's going to stay constant. Okay, fine, fair enough, got my point? Yes. So now what we are going to do is the SI unit of a capacitor, so we will write all these things. So capacitance ka SI unit, we will write, it's simple, very easy, it's known as farad, FARAD. Okay, fine. So there are few multiple units. 1 mF, millifarad, is equal to 10 की power minus 3 farad, fine, fair enough. And there is 1 microfarad, mu f, is equal to 10 की power minus 6 farad. Okay, fine, fair enough, got my point. So you have understood all these things, fine, fair enough, that's it, nothing can be more written from here. So farad का हम लोग थोड़ा सा definition कर लेते हैं, farad का define कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, farad will be nothing but 1F is nothing but C is equal to Q by V, so 1 coulomb C by 1 volt, that's it, that's the point of 1 farad is equal to 1 coulomb by 1 volt, that's it. Okay, fine, fair enough, got my point. So now we have to do the dimension of C. Dimension of C will be equal to, like, what is this is Q and this is like volt is like nothing but W by Q. Okay, so this Q goes up, you will get a Q square by W, fine, fair enough. We will do the dimension directly from over here. Q is equal to, हम लोग का क्या होता है, Q का obviously current A into क्या होता है, टाइम, current A into T, फाइन, फेयर एनफ, करंट A into T, तो फिर A का स्क्वायर T का स्क्वायर नीचे लिखा, और वर्क डन का क्या होता है, M L स्क्वायर T to the power -2, फाइन, फेयर एनफ। ये ऊपर के साइड पूरा के पूरा जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आके क्या बनेगा तुम्हारा, M to the power -1, L to the power -2, T to the power -2 ऊपर जाएगा +2, this 2 gets together and it will become T to the power 4, A to the power 2। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये बात को तय कर लो, ये वाला हो गया तुम्हारा
कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, ये बात भी कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो चलते अगला स्टेज पे करते हैं, ठीक है। पूरा के पूरा सारे चीज हो गया। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन किया जाए तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली इट्स डिफाइंड बाय, लाइक कैपेसिटेंस अगर डिफाइन किया जाए इट्स Q by V, दैट्स इट, Q by V, ठीक है। इसको बोल सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट वोल्टेज, दैट्स इट। तुम ये करके डेफिनेशन बना सकते हो। यहां से ऑफ कोर्स यू कैन मेक द डेफिनेशन व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड आल्सो, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, तुम ऐसे करके बना सकते हो। इट्स लाइक amount of charge per unit voltage, that's it, amount of charge stored in the capacitor per unit voltage, that's it, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलो और आगे किया। अभी क्या है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फटाफट से पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो सकता है? दो तीन ही है हम लोगों का, ठीक है। नंबर 1 है हम लोगों का पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पीपीसी जैसे जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ऐसा करके होता है। ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट्स आर केप्ट इन नियर पोजीशन टू ईच अदर एंड वी स्टडी मोस्टली इन दिस वन। नंबर 2 क्या हो जाता है? ऑब्वियसली स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और नंबर 3 क्या पढ़ते हैं? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो बेटा ये बात क्या है, ये दोनों जो कैपेसिटर है ना, ये दोनों को हम लोग कभी पढ़ेंगे? ऑब्वियसली दीज टू आर प्रेजेंट इन नीट एंड जेई ओनली, ठीक है, ओनली इन नीट जेई, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर ग्राउंडेड, इनर शेल ग्राउंडेड, आउटर शेल ग्राउंडेड, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का क्वेश्चंस वगैरह अलग से कराएंगे, इसका डेरिवेशन वगैरह सब अलग से करवाएंगे। दिस इज ओनली रिक्वायर्ड एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन आवर बोर्ड सिलेबस, ठीक है। ये बोर्ड्स पे है, BOARDS बोर्ड्स पे है, तो ये बहुत इजी है। आज इसका पूरा एकदम हिस्टेरिसिस कर लेते हैं, पूरा के पूरा सारे के सारे इसका कल्चर कर लेते हैं, ठीक है। इसका पूरा PhD कर लेते हैं, सारे के सारे चीज। अगला वीडियो पे ये सारे चीज हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। ऑब्वियसली आई विल डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स, नॉट नाउ, दिस थिंग वी लेट्स डू दिस वन ओनली, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बढ़िया से काम करेंगे, हो जाएगा हम लोग का। चलो तो फिर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी हो गया, ऑफ कोर्स PPC सीख लेते हैं, ये वाला हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर बना लेते हैं फटाक से। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? देखो बेटा, ये गया, ये तुम्हारा कैपेसिटर का प्लेट बना, ठीक है। तो हमारे साथ साथ बनाओ तुम लोग भी, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा ही दिखता है। ऑब्वियसली देयर इज अ मेटल प्लेट, ठीक है ना। तुमको पता है कि ए कौन सा है, इसका ये वाला ए हो गया, इसका एरिया ऑफ द प्लेट हो गया, इन दोनों का बीच में डिस्टेंस जो है ऑब्वियसली डिस्टेंस डी हो गया, ठीक है। इसके अंदर से क्या चलता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, इसके अंदर से ऐसे करके जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के हम लोग बता सकते हैं, दिस प्लेट विल बी ऑब्वियसली प्लस क्यू, दिस प्लेट विल बी माइनस क्यू। एज ऑफ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इट गोज अवे फ्रॉम चार्ज and from a negative charge it goes towards the charge, okay। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर क्या हो जाएगा? हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड EF ड्यू टू ए चार्ज प्लेट हम लोग डिराइव किए थे ना, चार्ज प्लेट। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पहले वाला चैप्टर पे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे, यहाँ पे हम लोग करते हैं ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही बढ़िया, ये तो सबको पता होता है, ये तो सबको पता होता है ये वाला फॉर्मूला। हाँ सर, तो अभी ये दो चार्ज प्लेट है यहाँ पे प्लेट नंबर 1 है, ये पे P नंबर 1, यहाँ पे P नंबर 2, यहाँ पे P नंबर 2। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा चार्ज प्लेट ड्यू टू ए, ठीक है, ए चार्ज प्लेट सिंगल के लिए। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट EF ऑफ ए कैपेसिटर कितना होगा? इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों के लिए, दो प्लेट के लिए, ठीक है ना। ये दो प्लेट के लिए, दोनों प्लेट के लिए होगा ना, बढ़िया से देखो गाइस। ऑब्वियसली लाइक फॉर P1, फॉर P2, देखो। एंड नाउ दिस P1 इज फॉर विच वन? इज P1 क्या है? प्लस Q के लिए है। हाँ सर, ये P1 प्लस Q के लिए है, इसके लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन पे। और इसके लिए क्या है? दिस इज फॉर, ये वाला कौन सा के लिए है? माइनस Q के लिए। इसके लिए भी डायरेक्शन कौन सा है? इधर ही है। हाँ कि ना बोलो? तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस Q रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह पे डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर वे। और प्लस Q होगा, ऑब्वियसली प्लस Q अगर है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन पे होगा? EF इस तरह की, इस तरीके से ही जाएगा ना, इस डायरेक्शन पे ही जाएगा, इसी दिशा में जाएगा, दोनों के सेम। उसके लिए इनसाइड, इसके लिए भी आउटसाइड, आउटवर्ड, ठीक है ना। ऑब्वियसली यू नो इनवर्ड टुवर्ड्स दिस वन, इनवर्ड WARD, और ये वाला आउटवर्ड OUT, आउट WARD,
बस तो दोनों एक साथ ऐड होगा कि नहीं होगा, बोलो ऐड होगा ना, बढ़िया से ऐड हो जाएगा। तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो ऑफकोर्स यू कैन सी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, बढ़िया से करते हैं ई नेट फिर से, चलो ई नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तुमको पता ही हो रहा है, दिख रहा है कि इट विल बी नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, दैट्स योर फॉर्मूला, दैट्स माय पॉइंट गाइस। ये वाला काम ले लो, अरे ले ले रे बेटा, ले 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 ले, हाँ ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। दैट्स इट, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया। अभी इससे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू तुम्हारा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ए, तो इस पे बैठा दो, इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी और एक फॉर्मूला बन गया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। काम हो गया, ये भी डेरिवेशन हम लोग का हो गया, चट्टा हो गया, ठीक है, ये वाला भी डेरिवेशन हो गया। दैट्स इट। चलो तो और आगे चलते हैं, ये वाला हो गया, तुम लोग देख लो, और आगे चलते हैं, ठीक है। यहां से आगे चलते पोटेंशियल बना लेते, एक सेकंड पानी पी लेते थोड़ा, रुक जाओ। तो पोटेंशियल कैसे करोगे, पोटेंशियल भी आसान है। पोटेंशियल क्या होता है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हाँ सर W बाई क्यू है, हाँ यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है, W बाई क्यू है। तो अब देख लेते हैं, तो हम लोगों का W क्या है, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एक सेकंड में डेरिवेशन हो जाएगा। तो F का क्या वैल्यू होता है, इज इक्वल टू Q इंटू ई, हाँ सर, अरे मिट जा रे, मिट जा रे, मिटता परेशान करके रख देगा ये वाला, अरे भाई साहब रे, हाँ ऑफ कोर्स। चलो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, हाँ सर, तो इसको यहां पे ले जाके बैठा दो, इज इक्वल टू Q इंटू ई इंटू डी है, हाँ सर, यहाँ पे बैठा दो, और V इज इक्वल टू तुम्हारा फॉर्मूला तैयार, Q इंटू ई इंटू डी डिवाइडेड बाई Q, हाँ ना, तो Q से Q मरा तो ऑफ कोर्स, और V इज इक्वल टू E इंटू डी, दैट्स इट, E इंटू डी बन के तैयार हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला। अब देखो पिछले स्लाइड पे चले जाओ, एक सेकंड में देख लो क्या था, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट बस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को वहां पे ले जाके बैठा देते हैं, यहाँ पे E का जगह पे बैठा देते हैं, और हम लोगों का क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था इंटू डी, ये वाला और एक फॉर्मूला बन गया। चलो ये वाला और एक फॉर्मूला, इसको भी अब चेंज करके यहां से भी तुम और लिख सकते हो, और लिख सकते हो, ठीक है, और लिख के क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू, देखो सिग्मा को रिप्लेस करो, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये भी चलेगा, ये वाला भी फॉर्मूला तुम्हारे लिए तैयार। तो तीनों तीन फॉर्मूला तुमने बना दिया, बढ़िया से हो गया ना, तीनों फॉर्मूला। तो तुम लोग कितना बनाया, देखो एक नंबर वाला फॉर्मूला, ये मोस्ट यूज्ड है, ये मोस्ट यूज्ड है, हाँ ये वाला मोस्ट यूज है। ये 2 नंबर का फॉर्मूला सेम समटाइम्स यूज, ये वाला और भी लेस यूज, ठीक है, सबसे ये थोड़ा सा यूज्ड है, ये मोस्टली यूज, मैक्सिमम टाइम वी विल यूज दिस वन, इट्स नॉटली यूज, दिस इज हार्डली यूज्ड, ओके, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया हम लोगों का, बात बन के तैयार हो गया। चलो और आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देख लो क्या है, चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो अब चार्ज स्टोर देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब क्या किया अभी हम लोगों ने, सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, ये वाला हम लोगों का अभी फॉर्मूला डिराइव किया ना हम लोगों ने। तो अभी इससे भी आगे जाके क्या किया, Q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर ये वाला किया अभी हम लोगों ने। तो अभी जाके क्या करोगे, अब Q का जगह पे ये V, ये वाला फॉर्मूला को ले लेते हैं, ठीक है, देखो और क्या करोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करके Q को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और Q इज इक्वल टू, तुम ही कर ही सकते हो, V इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी हुआ, हाँ कि ना, बोलो सर, सब सारे इधर मल्टीप्लाई किया, Q को सब्जेक्ट बनाया, इसको नीचे लेके गया। अब देखो मजे के बात क्या है, तो अब अगर और तुम और एक स्टेप्स लिखो, Q इज इक्वल टू, V को साइड पे रखो, ठीक है, तो फिर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिखो, हाँ इंटू V लिखो यहाँ पे, ठीक है, एक इरेजर ले लेते, दोनों डॉट रेशियो जैसा लग रहा है, ठीक है, मिट जा रे, हाँ तो अभी क्या है, हाँ तो फिर डॉट इंटू V है। अब देखो मजे का बात क्या है, ये वाला ना हम लोगों का C बन गया। हम लोगों का क्या फॉर्मूला है, देखो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू V है ना, हम लोगों ने देखा था ये वाला फॉर्मूला, इसको जगह के यहाँ पे रिप्लेस कर देते, तो फिर क्या हो जाएगा, और हम लोगों का C इंटू V इज इक्वल टू A डॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इंटू V, ये वाला है, तो V से V मरेगा दोनों साइड पे, कैपेसिटेंस बन के तैयार। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, दोनों जगह पे फॉर्मूला लगाओ,
ये वाला भी एक नंबर का फॉर्मूला तुम्हारा बना, चार्ज इन टर्म्स ऑफ दिस वन। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी तुम्हारा बना कि C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ठीक है, ये वाला हो गया। बस ये वाला भी तुम्हारा बन गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है? तो फिर एरिया बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल पास थ्रू दिस एंटायर रीजन ऑफ स्पेस, एंड D is the distance between the plates। ठीक है, यही बात है, बात को समझ लो। एंड दिस इज एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस देखो यहाँ पे चार्ज भी नहीं है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज वगैरह है नहीं, इट्स एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर CAP डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। देखो बेटा अच्छे से देखो, ये बात को समझ लो, कभी भी चार्ज के साथ गुला मत लेना। ठीक है, चार्ज और वोल्टेज के साथ। ऑब्वियसली कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, समझ लो बात को, मैं कैप कैप लिख दिया, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, GOMETRY। ये लिखना नहीं पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कि A इज इक्वल टू एरिया AREA, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी P डॉट ऑफ फ्री स्पेस, ये नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग बच्चे नहीं हो। ठीक है, फ्री स्पेस FRW फ्री स्पेस SP, और तुम्हारा D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये वगैरह वगैरह नहीं लिख रहे। तुम लोगों को समझ ही आ रहा होगा। ठीक है, तुम लोग बहुत डॉक्टर बनने वाले हो, ऑब्वियसली डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हो, ये सारी चीज तो तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स एरिया ऑफ द प्लेट्स। ओके, तो परमिटिविटी क्या होता है? ऑफ कोर्स अगर तुमको पता है, फिर भी बोल रहा हूं, द स्पेस कितना परमिएबल है टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हाउ मच द स्पेस विल अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। ओके, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो अलग होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कितना पास करने देगा। ठीक है, ये वाला भी हम लोगों का हो गया, बस काम खत्म। ये वाला भी हो गया, चलो ये भी सीख लिए, ये भी डेरिवेशन हो गया। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये तो सिखाई दिया अभी हम लोगों ने, अभी तो सिखा दिया, अभी तो ये वाला कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर करवा दिया, पूरा के पूरा ये वाला कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है, हाँ ना, इसको करवा दिया। ठीक है तुम लोगों को, तो अब चलो ये वाला भी हो गया हम लोगों का, डन 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 डन, ये वाला डन हो गया। तो फिर आगे चलते हैं। अब क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो ही कॉम्बिनेशन होता है, तो सीरीज को पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा सीरीज ACRI ES और AC लिखते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखते हैं। ठीक है, सीरीज कैसे दिखता है सर? ऐसा ऐसा दिखता है, ऑब्वियसली C1 C2 C3। ठीक है, दोनों जगह पे ऐसा ऐसा है। ठीक है सर, तो ऑब्वियसली ये क्या है? C1 है कैपेसिटर, C2 है C3। तुमको क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हो कि C1 C2 C3 कैसे सीरीज में करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे करते हैं तुमको पता है, यहाँ पे कैपेसिटर को सीरीज में करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मान लेते हैं कि यहाँ से Q चार्ज गया, तो ऑब्वियसली चार्ज इज कांस्टेंट ओवर देयर इन ए सीरीज सर्किट। यू नो ना, चार्ज कैन नॉट गो आउट एनीवेयर, चार्ज हैज नोवेयर टू गो। ये एक बार घुस गया एक लाइन में, तो वो वहां से बाहर नहीं जा पाएगा। एक गली में एक रास्ता, एक तुम साइकिल लेके घुस जाओगे तो तुम वहां से बाहर नहीं जा पाओगे। यू नीड टू फाइंड अ जंक्शन, इफ यू डोंट फाइंड अ जंक्शन the charge will be same. So Q is equal to constant in series circuit. And हमेशा चार्ज का, as charge cannot flow out anywhere, as charge यहां पे लिख देते हैं, as charge can't fly out or flow out anywhere। ठीक है, ये बात है। तो अब अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो ये सारे के सारे के लिए क्या करेंगे बेटा? बहुत ही आसान से करेंगे, ये वाला हो गया। तो अब एक एक का ना वोल्टेज बना के लिखते हैं, एक एक का वोल्टेज बना के लिखते हैं। ठीक है, इसका वोल्टेज ले लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, पेन में सीरीज का स्पेलिंग वगैरह तुम लोग देख लो, मैं वैसे ही स्पेलिंग में बहुत वीक हूं, अब स्पेलिंग नहीं सिखाने बैठेंगे तो फिजिक्स भूल जाएंगे। तो चलो, तो यहाँ पे क्या है? चलो ये वाला V1 हो गया, ये वाला मान लेते हैं V2 हो गया, यहाँ पे V3 है। ठीक है, अब V3 है। ठीक है, V1 V2 V3 है। ठीक है, तो बेटा V1 V2 V3 है तीनों का। क्यों सर? ऑब्वियसली तुम्हारा प्रश्न आएगा कि V1 V2 V3 चार्ज कांस्टेंट है, वोल्टेज क्यों कांस्टेंट नहीं है? तो ऑब्वियसली दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं। देखो, ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्यों होगा? पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो एनर्जी होता है। एक जगह से दूसरा जगह जाओगे तो एनर्जी ड्रॉप होगा। तुम एक दरवाजा खोल के दूसरा दरवाजा पे जाओगे, तुम्हारा एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, एनर्जी, यू विल वेस्ट एनर्जी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, सम एनर्जी, दो इट्स वेरी लेस, बट वी विल कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है। तो ऑफ कोर्स इफ यू गो वन बाय वन एक एक हर्डल को क्रॉस करते हुए जाओगे, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉप होता है, तो पोटेंशियल भी ड्रॉप होगा। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल।
पोटेंशियल्स। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, ऑफ कोर्स वी कैन राइट लाइक Q1/C1, हाँ ना सर, Q1/C1 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी है, था ना हम लोगों का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी बाई वी, तो V1 इज इक्वल टू दिस वन, तो ऐसे करके डॉट 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 V1 V2 V3 सारे के सारे के लिए लिख लिए, ठीक है ना। तो V नेट क्या हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V2 प्लस V3, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, ये वाला स्केलर है, तो ऑफ कोर्स ऐड करेंगे ना बेटा, स्केलर क्वांटिटी ऐड कर लो, तो यहाँ पे इंडिविजुअल जगह के बैठा दो, तो ये क्या हो जाएगा, V नेट विल बी ऑब्वियसली Q नेट, हाँ सर, डिवाइडेड बाई सी नेट, हाँ सर, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1/C1 प्लस Q2/C2, हाँ सर, C2 प्लस Q3/C3, बढ़िया सर, C3 ये वाला पूरा के पूरा ब्रैकेट लगा लिया। अब हम लोग जाके क्या करेंगे, अब देखो फिर से एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट सर, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट लगा लिया, Q नेट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा ना, ऑफ कोर्स। तो अभी देखो सारे के सारे इक्वल है, बोला था ना मैंने, चार्ज कैन नॉट फ्लो आउट, दिस वाला ये सारे के सारे चीज ना इक्वल, Q नेट विल बी इक्वल टू ये है भी Q, ये भी Q, ये भी Q, सारे के सारे Q, ठीक है, सारे के सारे Q ही है, Q नेट है, कहीं पर सीरीज पे चार्ज का ड्रॉप नहीं होगा, चार्ज घुस गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द थ्योरी कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एक बार घुस गया तो ना वो मरेगा ना वो जिंदा, मतलब इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, यू कैन नॉट क्रिएट इट, you cannot add even, you cannot destroy it even, so everything will be similar, so यहाँ पे हो गया, energy will always be get used, okay, so इसलिए ये वाला हुआ, तो ऑफ कोर्स इसका Q नेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हम लोगों का Q नेट बन गया Q, यहाँ पे C नेट बना C नेट, और यहाँ पे देखो Q1 Q2 Q3 सब सारे के सारे Q ही है ना, तो ऑफ कोर्स Q को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बस बढ़िया काम खत्म। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऑफ कोर्स इसको मार दोगे, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार, 1/C नेट, ये वाला फॉर्मूला 1/Q1 प्लस 1/Q2 प्लस 1/Q3, बस 1/Q3, बढ़िया सा फॉर्मूला। यही वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पे, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, यहां पे उल्टा हो गया, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, बढ़िया। दो चार्ज के लिए क्या करेंगे, ऑफ कोर्स दो चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं फॉर टू चार्जेस टू कैपेसिटेंस, चार्ज नहीं, फॉर टू कैपेसिटर क्या कर सकते हैं हम लोग, सी नेट विल बी इक्वल टू, शॉर्टकट फॉर्मूला, ट्रिक है नीट जेई का, Q1 Q2 नहीं, अरे मैंने क्या लिखा भाई साहब, तुम लोग भी थोड़ा बताते नहीं हो, सी होना चाहिए, हमने जल्दबाजी से यहाँ से Q लिख दिया, तुम लोग देख ही रहे हो सी है ना, सी ही लिखना चाहिए था मेरे को, मैंने जल्दबाजी में एक्साइटेड होके ज्यादा तुम लोगों का ये लिख दिया, तो ऑब्वियसली सी नेट क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, बच्चा को भी पता है ना, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यहीं से आता है, इसको कर दो। तो अगर फॉर मल्टीपल कैपेसिटर्स, फॉर इन नंबर ऑफ कैपेसिटर हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस, इन नंबर ऑफ सिमिलर कैपेसिटर्स भी बोल सकते हैं, हैविंग इक्वल EQ कैपेसिटेंस CAP इक्वल टू C, तो फिर ये क्या हो जाएगा, C equivalent will be is equal to C by N, ठीक है, ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला होता है दोनों का, ये क्या है, हम लोगों का नीट जेई का ट्रिक है, ठीक है बेटा, तो ये नीट जेई का हमेशा ट्रिक देख लो, ये छोटा सा ट्रिक है हम लोगों का, सीख लो बेटा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ट्रिक है नीट जेई का, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक। चलो ये बात भी हो गया, ठीक है, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, चलो और आगे चलते हैं, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल नहीं करवाया तो पैरेलल करवा देते हैं, यहाँ पे पैरेलल भी और आसान है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, नाउ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा ना, हर किसी को पता है, हाँ सर, ये C1 C2 C3, अब पैरेलल पे होता है क्या, गेम थोड़ा बदल जाते हैं, यहां पे देखो दोनों का पॉइंट के बीच में, दोनों का पॉइंट पे यहां पे V सेम ही होता है, यहां पे डेल्टा V जो है सेम ही होता है क्रॉस एवरीवन, यहां पे सारे के सारे वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, लेकिन चार्ज तुम्हारा जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके, चार्ज क्या हो जाएगा बेटा,
चार्ज तुम्हारा बनेगा डिस्ट्रीब्यूट होके, यहाँ पे जाएगा तो बनेगा Q1, यहाँ पे जानेगा तो क्या क्या बनेगा Q2, इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा Q3, डिस्ट्रीब्यूट होके चले जाएगा। तीन रास्ता है तुम्हारे सामने से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके चले जाएगा, तीन रास्ते से आधा आधा करके चले जाएगा, ठीक है। लेकिन डेल्टा वी दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा वी इज इक्वल टू सेम ही होता है दोनों पॉइंट का। 1000 लगा दो, 10,000 लगा दो, 5 लगा दो, 10 लगा दो, 100 लगा दो, कुछ भी लगा दो, वोल्टेज विल बी सेम। तो फिर हम लोग का क्या बन रहा है ऑब्वियसली, तो इसका पैरेलल क्या बनेगा ऑब्वियसली, Q का नेट क्या हो जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू हम लोग का ऐड हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3। हाँ सर, अब Q का फॉर्मूला लगा देंगे, Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, हमेशा लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C नेट इंटू V का नेट, V का नेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। अब V नेट भी देखो सारे के सारे, यहाँ पे डेल्टा V यही बात है, यही वाला हम लोगों का V नेट भी है इज इक्वल टू V भी है, सारे के सारे डेल्टा V यहाँ पे सेम ही है। अब देखो तुम आसानी से मार पाओगे ये सारे चीज को ना मार पाओगे। देखो सारे मरेगा, ये मरा, इससे मरा, ये मरा, सारे के कॉमन लेके मर जाएगा। तो फिर C नेट तुम्हारा is equal to C1 plus C2 plus C3। n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बना, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो क्या करोगे बेटा, इसको n इंटू सी कर दोगे, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सिमिलर कैपेसिटर्स n इंटू सी कर दोगे, हो जाएगा काम, ठीक है। यही बात है, समझ जाओ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करवाएंगे आगे जाके, कॉम्प्लेक्स सर्किट, व्हिटस्टोन ब्रिज वगैरह सारे के सारे इसके ऊपर करवाएंगे, बहुत जरिए अच्छा चीज करवाएंगे, बस बढ़िया। अब एनर्जी स्टोर कर लेते थोड़ा सा, अब एनर्जी स्टोर देख लेते, ठीक है। इसके बाद में वाला स्लाइड था एनर्जी स्टोर, पेन देख लेते कौन सा ये है, ठीक है। चलो एनर्जी स्टोर करते हैं, इस पे ना व्हाइट ले लेते हैं, चलो ये वाला पे एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर है तो थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। लेट Q is equal to, Q be the charge of a capacitor at any instance ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है ना बेटा, चार्ज कर रहे हैं GING, चार्जिंग के वक्त पे Q चार्ज है ऑब्वियसली सर। तो फिर क्या बनेगा हम लोगों का, Q इज इक्वल टू C इंटू V, हाँ सर। और हम लोगों का V क्या बनेगा, Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C, हाँ सर। अब यहां तक तो सही है, अब आगे जाके थोड़ा सा क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू CV बेसिक वाला फॉर्मूला है हम लोग का, V इज इक्वल टू Q बाई C, ये भी बेसिक वाला फॉर्मूला है। अब देखो V क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज व्हाट, स्मॉल वर्क डन, या लाइक डेल्टा नहीं करते, वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल BRINGING, ब्रिंगिंग स्मॉल चार्ज, यही बात है ना। तो फिर V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q है सर, तो इज इक्वल टू DW बाई DQ होता है, हाँ सर। तो इसके आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग ऐसे करके लिखेंगे क्या है, DW इज इक्वल टू, थोड़ा सा रुक जाओ, वहां पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो रुक जाओ एक सेकंड ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे और हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके DW इज इक्वल टू V डॉट DQ, हाँ सर V डॉट DQ। अब V का फॉर्मूला जो है यहाँ पे लाके बैठा देते हैं ये वाला, तो और हम लोग का क्या बनेगा, और देखो V इज इक्वल टू V, ये जो है ना Q बाई C, इसको यहाँ पे ले जाके बैठा देते हैं। तो फिर अब DW का देखो, DW बनना क्या हम लोगों का, Q बाई C डॉट DQ, हाँ सर। अब ये पूरा बनाने के लिए, पूरा वर्क डन बनाने के लिए इंटीग्रेट करो, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, जीरो से पूरा, ये इनिशियल कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज प्रेजेंट इन द कैपेसिटर, ये फुल चार्ज प्रेजेंट इन द कैपेसिटर, फुल चार्ज इज इक्वल टू Q, और यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है, यहाँ पे फुल वर्क डन है, हाँ सर। तो अब क्या बनेगा, एकदम बेसिक बारीकी से करवा रहे हैं, तो ये बना W, और ये तो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, Q चार्ज के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है ना। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C क्या है, ऑब्वियसली C इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये तो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, अभी ये तो चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो DQ के रेस्पेक्टिव के साथ इंटीग्रेट करोगे तो इसका कोई चेंज नहीं बनेगा, तो बाहर ढकेल दो ना, ये कांस्टेंट है, बाहर लेके जाओ, सो भाई साहब बाहर चले जाओ, हाँ सर। तो अब इंटीग्रेट किसका करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ Q डॉट DQ क्या होता है, तुम लोग पता है, तुम लोगों को Q स्क्वायर बाई 2 है ना, तो यहाँ पे बना दो Q स्क्वायर बाई 2, हाँ सर, Q स्क्वायर बाई 2, हाँ सर। ऊपर लिमिट नीचे लिमिट क्या होगा, नीचे लिमिट 0, ऊपर लिमिट Q, अंदर लाके बैठा दो, काम तुम्हारा तैयार हो गया, सबसे खतरनाक वाला डेरिवेशन बन के तैयार। तो फिर W इज इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे Q स्क्वायर,
क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना। ऐसे करके नहीं लिखेंगे तो फिर तुमको दिक्कत आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे हाफ इंटू, नहीं नहीं चलो यही लिखते हैं ना, यही अच्छा होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। बढ़िया, हो गया काम खत्म। एक सेकंड, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यही वाला फॉर्मूला है किसका, किसका है बेटा, वर्क डन का है। अब ये वर्क डन क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज इनसाइड दैट ऑफ ए कैपेसिटर। दिस इज द वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज, दिस वर्क डन इज सेव्ड इन ए कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही तो बात है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन, दिस इज द वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज इन ए कैपेसिटर। समझ में आ रहा है ना, दिस इज द वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज इन ए कैपेसिटर। तो फिर क्या बना, दिस is the work done in storing the charge of a capacitor. So this work done is saved or is stored in form of energy, electrical energy, E-N-E-R-G-Y। बस तुम्हारा काम बना। तो फिर U is equal to Q square by 2C। बढ़िया बन गया, 2 into C। काम खत्म करो रे, पैसा लेके भागो रे। दैट्स इट, ये वाला हो गया काम, बढ़िया से हो गया, एकदम मजेदार वाला फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते, Q इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सा खेल खेल सकते है ना। देखो अब खेल खेल देंगे। हाँ बेटा, यहाँ पे नहीं, ये वाला पेन पे ले लो, और ये वाला पे ना येलो ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब क्या है बेटा, तो यहां से देखो तुम क्या कर सकते हो, पेन चेंज हुआ, ये वाला व्हाइट है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो Q इज इक्वल टू CV है ना, तो यहाँ पे ले जाके बैठा दो, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, U इज इक्वल टू, देखो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। तो अब C से C मरेगा ना, ये वाला स्क्वायर काटो, इसके साथ मार दो, तो ये बनेगा तुम्हारा सबसे मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला, द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर, ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये वाला क्या है, ऑफ कोर्स मोस्ट यूज्ड, ठीक है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला। हम सिखा देते कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम सारे के सारे चीज सिखा देते कब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो सी पे जगह पे दूसरा, अगेन यू कैन राइट लाइक सी इज इक्वल टू, इसको नीचे लेके जाओ, क्यू बाई वी। हाँ सर, ये भी ले जाके वहां पे बैठा सकते हो ना। तो ऑफ कोर्स इफ यू मेक इट सेट, सो यू विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, तुम्हारा क्या बन रहा है, सी के जगह पे क्यू बाई वी बैठाओ, क्यू बाई वी बैठाओ, इंटू वी स्क्वायर लगाओ, तो ऑब्वियसली क्या कट रहा है, ये वाला कटा इसके साथ। तो ये फॉर्मूला क्या बना, यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बाई 2, या ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो ये वाला लिखेंगे कैसे, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। बढ़िया, सारे के सारे फॉर्मूला लपेट लो बेटा, लपेट लो, 1 2 3 करके। 1 2 3 आया ना हम लोगों के पास, हाँ रुक जाओ एक सेकेंड, हम करवा देते हैं। चलो ये वाला हो गया तुम्हारा 1 नंबर वाला फॉर्मूला, ये वाला हो गया 2 नंबर फॉर्मूला, ये वाला बना तुम्हारा 3 नंबर फॉर्मूला। सबसे मोस्ट यूज कौन सा है, ये वाला है। अब पूरा सिखा देते कब कहां पे कौन सा वाला यूज करोगे, नहीं तो तुम तो लाइक समझ हाय हाय करते लग जाओगे, बच्चा लोग बोलेगा, रोने लगेगा, हाय सर ये तीनों फॉर्मूला कहां पे लगा, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आना भी नहीं चाहिए। चलो हम दिखा देते, एकदम क्लियर कट बता देते क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियर कट बता देते, ठीक है। तो क्लियर कट बताने के लिए पहले पेन चेंज कर लेते, क्लियर कट बताने के लिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते, ठीक है। तो बेटा अब पहले बात है कि क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन वो वाला, व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला, व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला। बस ठीक है। तो अब तीनों केस बनाते, पूरा लपेटते, समझ जाते हैं ना, नहीं ये करते हैं, ठीक है। चलो पहले वाला है कि सिचुएशन या कंडीशन, कुछ भी लिखो, सिचुएशन लिखो, SITUATION, सिचुएशन लिखो, फिर कांस्टेंट बनाओ, कौन सा वाला तुम्हारा कांस्टेंट है, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा दूर में लिखते हैं, कांस्टेंट बनाओ। अब लिखो कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला, एंड लिखो वाई, सारे समझ जाओगे, ठीक है। अब देख लेते सारे चीज, ठीक है। सिचुएशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, फॉर्मूला क्या बनाओगे, क्यों बनाओगे। सिचुएशन पहला वाला कंडीशन क्या है, दोनों ही कंडीशन हो सकता है। देखो बैटरी एक कनेक्टेड हो सकता है कैपेसिटर का, बैटरी खुला हुआ हो सकता है। व्हेनेवर यू जॉइन ए कैपेसिटर विद ए बैटरी मींस द बैटरी इज प्रेजेंट इन द सर्किट, सो इट्स गेटिंग चार्ज, तो ऑब्वियसली बनाते हैं क्या, बैटरी कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी जॉइन और कनेक्टेड, ठीक है।
तो अब कांस्टेंट कौन सा बनेगा, कांस्टेंट। बैटरी जब जॉइंट होता है ऑब्वियसली इट गिव्स वोल्टेज, सो ऑब्वियसली इट विल गिव लॉट ऑफ वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली बेटा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू VOLTAG, वोल्टेज। आंख बंद करो ऐसे करके, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, बस काम खत्म। V है, V का फॉर्मूला लगाओ। क्यों, एज बैटरी ज्वाइन करोगे ना, वो मिली सेकेंड के अंदर ही टर्मिनस वोल्टेज ऑफ द बैटरी का इक्वल बन जाते हैं। इसका वोल्टेज कितना बन जाएगा, इक्वल, तो कैपेसिटर का वोल्टेज बन जाएगा कितना, इक्वल ऑफ द टर्मिनस वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बताए थे पहले ड्यूरिंग चार्जिंग, वो बहुत जल्द होता है, तुरंत होता है, मिली सेकंड में अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बैटरी जॉन एज बैटरी प्रोवाइड्स द PD, पोटेंशियल डिफरेंस, बात खत्म। तो यहां पे वोल्टेज दे देते, पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स अस। अब दोनों कंडीशन क्या है, बैटरी रिमूव, सेकंड वाला कंडीशन बैटरी रिमूव, REMOV। अब क्या कांस्टेंट है, अब चार्ज तो अंदर चले गए भाई, चार्ज कहां पे, जाने का कोई जगह है नहीं, चार्ज भागेगा कहां पे, वहीं पे फंस गया, चार्ज गॉट ट्रैप, तो ऑब्वियसली यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा चार्ज, एज चार्ज गॉट ट्रैप। तो चार्ज का वाला क्या फॉर्मूला था, अभी करवाया ना, अभी क्यू स्क्वायर बाई, देखो 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 देखो, अभी करवाया, देखो यहाँ पे पहले वाला क्यू स्क्वायर बाई 2C बनाया ना, क्यू स्क्वायर बाई 2C, अभी बोल नहीं पाओगे क्यू स्क्वायर बाई 2C, देखो अभी यहाँ पे बैठा दो, आंख बंद करके बैठा दो यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाई 2C, बस बात खत्म। क्यों, एज चार्ज गॉट ट्रैप्ड, हैज नोवेयर टू गो, चार्ज ट्रैप्ड एंड नोवेयर टू गो। क्यों, पूरा एकदम थ्योरी रेडी, चार्ज इज ट्रैप्ड and has nowhere to go, and has nowhere to go, बस बात खत्म। और तीसरा वाला पॉइंट है, जब दोनों ही चीज दे देगा, ये दूसरा वाला कंडीशन हो गया। तीसरा वाला कंडीशन क्या बना थे, when both Q and V is given in the question, QES। तो कांस्टेंट क्या है, कुछ कांस्टेंट वगैरह है नहीं, तो अब बचा वाला फॉर्मूला लगाओ, इसके जगह पे हम लोग डाले थे ना, इसके जगह पे Q बाई V डाले थे, तो अब काट गया, तो ऑब्वियसली बने गया तुम्हारा Q इंटू V डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला। तो ऐसे फॉर्मूला तो नहीं लिखते हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू Q इंटू V। अब ये भी कुछ है नहीं, बस बढ़िया खत्म। बोलो तुम लोगों का क्लियर हो रहा है हाँ कि ना, पूरा के पूरा क्लियर हो रहा है हाँ कि ना, बढ़िया से बोलो, पूरा के पूरा सारे चीज क्लियर करवा रहा है, एकदम बारीकी डिटेल से बोल रहा है। ये कौन दिखा देगा, कौन दे देगा तुमको, किताब में भी नहीं देता है। ऑफ कोर्स हो गया ना, काम खत्म, ले लो, गोल्ड डस्ट है, पूरा गोल्डन डस्ट है। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। एनर्जी डेंसिटी करने का तरीका क्या है, U इज इक्वल टू हाफ इंटू CV स्क्वायर, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, हाफ इंटू CV स्क्वायर है ना। तो अब क्या है बेटा, 2-3 फॉर्मूला एकदम लगाएंगे। C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, हाँ सर हो गया। अब वोल्टेज का क्या होता है, V इज इक्वल टू, हम लोग पहले ही पढ़े थे, E इंटू D है ना, E इज इक्वल टू V बाई D, तो दोनों में ले जाके यहाँ पे बैठा दो, तो और क्या हो जाएगा, और U इज इक्वल टू हम लोग का हाफ इंटू C का फॉर्मूला क्या आया, A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D हुआ, इसके साथ E स्क्वायर डॉट D स्क्वायर है ना, ये वाला होगा। तो ऑफ कोर्स काटो इसको, इसके साथ इसको काटो, रुक जाओ एक सेकंड, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, एक बार ग्रीन ले लिया, ये वाला काटो, ये वाला कट जाएगा, तो हो गया। तो अब थोड़ा शफल करके लिख लेते हैं, ठीक है, हाफ इंटू देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटू A को इसके साइड पे लेके आया, A इंटू D। अब देखो बात, ये वाला क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट्स इंटू डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ये तुम्हारा क्या बनता है, ये बनता है वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम बनता है हाँ कि ना, ये वाला है 2D, ये वाला और एक D थिकनेस, तो ये वाला बन गया वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो अब डेंसिटी क्या है, अब देखो बात, U स्मॉल u डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, ENERGY, एनर्जी डेंसिटी, DNSAT। डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी इट्स नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है एनर्जी U, बड़ा वाला U बाई वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम क्या है बेटा, और दिखाते हैं। स्मॉल वाला U इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, VOL, ठीक है। यहां पे क्या है, ये बड़ा वाला U है, ये वाला छोटा वाला U है, VOL, ये क्या है, A इंटू D है। अब A इंटू D को नीचे लेके जाओ, यहाँ पे क्या था, U था ना, इसको नीचे लेके जाओ, इसके नीचे लेके जा पाओगे ना, इसको नीचे लेके जा पाओगे, ऑब्वियसली नीचे लेके जा पाओगे। तो फिर हम लोग का छोटा वाला U, ये बड़ा वाला U समझ लो, छोटा वाला U है, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। बढ़िया, तुम्हारा ये वाला बन गया फॉर्मूला,
बस ये वाला एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ये वाला एनर्जी डेंसिटी है और यू एनर्जी है, ये वाला एनर्जी है, ENERGY एनर्जी है और ये वाला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम है, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ई डॉट। समझ में आ रहा है बेटा? बढ़िया, पूरा थ्योरी ऑफ कैपेसिटर खत्म है, एकदम बढ़िया से खत्म। हम पानी पी लेते, थोड़ा क्वेश्चंस करवा देते, अभी 2-4 क्वेश्चंस कर लेते, पूरा समझ जाएंगे हम लोग सारे के सारे चीज। PYQs कर लेते फटाफट से, क्वेश्चन 1 2 3 कर लेते, हो जाएगा तुम्हारा। रुक जाओ एक सेकेंड, तो ये वाला को ये यहां पे ले लेते, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते। टू लार्ज PPC पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ इतना एरिया, ये है कि एरिया है, अब आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 mm, ठीक है। ये वाला डी हो गया तुम्हारा, और एयर है कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, क्या लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कि क्या ही करोगे, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, E इज इक्वल टू V/D, काम खत्म करो। तो V कितना बोला, कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, तो फिर इज इक्वल टू 100 बटे कितना है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -3। हाँ सर, अब काटो ना, ये वाला कटा 1, ये वाला बना 50, तो फिर 50 इंटू +3 तो इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर 3 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। यही बात है न्यूटन पर कूलम, इसको और लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बस काम खत्म हो गया, एक वाला आंसर चटका दिया हम लोगों ने, ठीक है, एक वाला आंसर हो गया। अब चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट करना जाओगे तो क्या ही करोगे, चार्ज का वैल्यू क्या करोगे, चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब C तो जरूरत है, तो C का फॉर्मूला बना लेते हैं, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D है। हाँ सर, इज इक्वल टू एरिया बिटवीन द प्लेट्स कितना था, 0.002 है, इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है हम लोगों का 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। हाँ सर, डिवाइडेड बाय कितना होता है, D कितना है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3। हाँ सर, सो अब क्या करोगे, यहां से कुछ नहीं करना है, देखो 2 से 2 काटो, ठीक है, 2 से 2 काटो, फिर जाके वापस कर दोगे, ये वाला को ऊपर लेके जाओ, 2 से 2 काटो, इसको ऊपर लेके जाओ, ये टन टनाटन एकदम चला गया, 1 2 हुआ और इसके साथ 1 काटेगा, ठीक है, ये वाला 3 है, समझ जाओ मेरे बात को। -3 है, ऊपर जाएगा +3, इसको ऊपर लेके जाओगे तो +3 बन जाएगा, हाँ कि ना, +3 बनेगा, 2 के साथ टिचकाओ करके +3 करोगे तो मतलब यहां से 1 2 3, मतलब यहां से 1 गया, 2 गया, 3 गया, 2 हो गया, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया, हो गया, बन रहा। तो इसको क्या बनाओगे, आसानी से तुम देख पाओगे, आसानी से एकदम काट वाट के इसको एकदम ठिचकाओ करके पे राजा इज इक्वल टू, इसको ना 9 मान लेते, 8.85 बोले तो 9 मान लेते, तो करीब करीब इसको 9 इंटू 10 की पावर -11, बस काम खत्म, फैराड हो गया। अब इसको ले जाके यहाँ पे बैठाओ, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 100 था, बस कट गया, ये वाला कटा, इसके साथ 9 बना, 2 है ना, तो इज इक्वल टू इतना है चार्ज, तो फिर कूलम, तो फिर इज इक्वल टू 9 NC, बस काम खत्म, नैनो कूलम, 10 टू द पावर -9 हो गया, काम खत्म, नैनो कूलम हो गया। अब एनर्जी स्टोर बोला गया, एनर्जी स्टोर तो तुरी मार देंगे, तुरी ही मार दोगे तुम कहीं पर भी, तो एनर्जी स्टोर कैसे करोगे बेटा, तो एनर्जी स्टोर U इज इक्वल टू हाफ इंटू CV², C इंटू V² इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना था, ये वाला पे था हाफ लगाओ, इंटू 9 इंटू 10 की पावर -11 लगाओ, इंटू 10 टू द पावर 4 लगाओ, क्योंकि 100 का स्क्वायर है ना, 10 टू द पावर 4, इसको काटो, इसको बनाओ 4.5, इसको काटो, 4 1 बन गया, ये बना 6, तो फिर क्या बना, ऑब्वियसली U इज इक्वल टू 4.5 म्यू जूल हो गया। 10 टू द पावर -6 क्या होता है, 10 टू द पावर -6 हो जाता है, ये वाला है ना, एक आंसर, 2 आंसर, ये वाला आंसर जरूरी नहीं था, ये वाला आंसर एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर सवाल लेकर दिया हम लोगों ने, और ये वाला भी एक आंसर है ना, ये वाला भी एक आंसर। तो ये वाला सवाल किस लेवल का था, ऑब्वियसली लिखना जरूरी है, ये डेफिनेटली ये CBSE PYQ CBSE लेवल का था, CBSE, ठीक है, CBSE PYQ लेवल का है, तो ये सवाल करके जाओ, पूरा बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये वाला भी हो गया हम लोगों का, बात खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला भी कर लिया हम लोगों ने। इसके आगे जाओगे तो और भी आसान सवाल है, और भी आसान नहीं हो पाएगा शायद, देखते हैं क्या है नहीं है, रुक जाओ एक सेकंड, ये वाला क्यों ना, ये वाला को ना थोड़ा यहाँ पे डाल देते, थोड़ा यहाँ पे डाल देते, चलो ये वाला बढ़िया लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डीप कर लेते, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ,
तो ऑब्वियसली थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इज ऑफ कैपेसिटेंस। ये वाला नीट लेवल का सवाल है, ठीक है, नीट का सवाल है, नीट लेवल का सवाल है। यहाँ पे तीनों चारों चीज पूछा नहीं जाएगा, टोटल एनर्जी वगैरह स्टोर पूछा जाएगा, एक एक सवाल। मैं नीट लेवल का बता रहा हूँ, यहाँ पे नीट पे ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 μF आर कनेक्टेड सच दैट 2 आर इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू पैरेलल। यहाँ पे बच्चा सोच नहीं पाते, तो 2 इन सीरीज कैसे होगा? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे है, दूसरा कैपेसिटर ये वाला पे है। अब सीरीज में, सीरीज के साथ पैरेलल कैसे कैसे करोगे? यहाँ पे डाल दो पैरेलल ना, ऐसे करके डाल दो ना, और यहाँ पे डाल दो तुम्हारा बैटरी, जो भी बैटरी है वगैरह, जो बैटरी है, कितना बैटरी है, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 6 μF, 6 सारे के सारे 6 μF, 6 μF, और यहाँ पर भी 6 μF, ठीक है ना। ये वाला हो गया काम। पीछे वाला साइड पे क्या है? ये वाला। अच्छा, तो ये वाला हुआ। हाँ, तो अब देखो क्या करना है, अभी इन दोनों का देखो, सी सीरीज का क्या है इन दोनों का, तो फिर C/2 है ना, ये वाला डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो फिर बना 3 μF, ठीक है। तो अब सी नेट कितना बनेगा? सी नेट बनेगा कितना, इज इक्वल टू, इन दोनों के साथ सीरीज को जोड़ो तो फिर 3 × 6 / 3 + 6, 3 + 6, ये वाला बनेगा ना। ऑब्वियसली नहीं सर, ऐसा करके नहीं बनेगा, क्योंकि पैरेलल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल एडिशन। तुम लोग गलती मत कर लेना करो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एडिशन बनेगा, सिंपल एडिशन बनेगा। क्या? इन दोनों का 3 बन गया, इसके साथ 6 है, 3 + 6 यहाँ पे μF, ठीक है, 9 हो गया, इज इक्वल टू 9 μF, ठीक है। ये वाला भी बात हो गया। अब ये वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने डन कर दिया। टोटल चार्ज सप्लाइड, तो फिर और एक क्या है? चार्ज। Q इज इक्वल टू C × V है सर। C कितना बना? C इक्विवेलेंट और V नेट, तो फिर C इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 9 μF इंटू V कितना है सर बेटा? 12, तो फिर ये 12 तो 12 ही है, इज इक्वल टू 108 म्यू चार्ज। इतना हो गया आंसर, दोनों का आंसर। ये भी डन कर दिया। अब एनर्जी स्टोर U इज इक्वल टू हाफ CV², हाफ इंटू C इंटू V²। तो अब C कितना है? हाफ इंटू C कितना है बेटा? 9 μF इंटू वोल्टेज कितना है? 12 का स्क्वायर बोले तो 144। इसको काटो ना, हम लोग काटते हैं ना, 72 बनाते हैं इसको, ये वाला काट दिया, तो 9 × 72 करीब करीब कितना होगा? 600 कितना हो जाएगा? 648 इतना हो जाएगा, 648, और इतना होगा म्यू जूल, क्योंकि यहाँ पे म्यू है, ठीक है ना, सारे जगह पे म्यू लिख लेना, म्यू है, ये वाला μF है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखो μF है, ठीक है, हम लिख ले, क्योंकि हम इतना 10⁻⁻6 को नहीं लिख रहे, ठीक है, 10⁻�6 को नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन एकदम नीट लेवल का है, आसान सा क्वेश्चन, बच्चा लोग सोच लेगा तो कर भी लेगा, ये बहुत आसान सा है, खिलाना एकदम खेल सकते हो तो खेल लेना, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इससे अगला वाला सवाल देख लेते हैं, इसका अगला वाला सवाल देख लेते हैं। चलो इसका अगला वाला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो 3 कैपेसिटर 2 μF 3 μF 6 μF जॉइंड इन, दोनों पैरेलल। इसके बाद तो फिर बात कैसे बन रहा है दिखाते हैं एकदम। तो यहाँ पे दोनों को पैरेलल बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, हाँ सर, इसके नीचे और एक कैपेसिटर है, ठीक है, दोनों को इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 μF यहाँ पे ये जो है इसके साथ है 6, ठीक है। अब जाके बैटरी को ज्वाइन कर रहा है, क्या कितना वाला बैटरी है, जो भी ये है बैटरी, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2 और 3, 2 है 2 μF, यहाँ पे है 3 μF, ठीक है, यहाँ पे 6 μF, ठीक है। बात को समझो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जेई नीट लेवल का है, नीट लेवल का ऑब्वियसली तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली, प्लस हाई लेवल कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअल हाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 24 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट। अब देखो एक एक चीज करते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज को निकालने जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पैरेलल है, इसके साथ वो वाला सीरीज पे है, तो C पैरेलल इज इक्वल टू कितना होगा? C पैरेलल इज इक्वल टू 2 + 3 μF, ठीक है। तो μF इज इक्वल टू 5 μF, ठीक है ना, हो गया काम खत्म, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5 μF, ठीक है, छोटा करके लिख रहे हैं, 5 μF हो गया। तो बात अब क्या है? C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 5 हो गया, ये वाला हो गया 5 μF, ये पूरा के पूरा 5 μF हो गया। तो अब इसके साथ जोड़ोगे, तो ये जो जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5 × 6 / 5 + 6 है ना, ये वाला 5 + 6, क्योंकि सीरीज पे है दोनों का, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फिर 30/11 μF, 30/11, एक खराब नंबर आ गया, ये वाला खराब नंबर है,
तो अब ऐसे ही करके रखते हैं, क्या हो सकता है, ऐसा है तो है, तो अब 30/11, ठीक है, ये वाला रख लिया। अभी अभी बात को समझो, मेरा बात को, अभी कुछ हुआ नहीं। अब बोला कि चार्ज ऑन ईच, ठीक है, चार्ज ऑन ईच, देखो समझो मेरा बात को, दोबारा समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहां से देखो, यहां से चार्ज निकला यहां से, तो फिर वो गया ऊपर के साइड पे, और यहां पे आके ये वाला आया, और यहां से गया दूसरा वाला कैपेसिटर पे, ठीक है। तो अब चार्ज यहां से जाएगा, तो इसको नेट मान के लोगे, ये वाला नेट मानोगे, तो यहां पर भी जो चार्ज है, यहां पर भी जो चार्ज है, यहां पर भी वही चार्ज जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज पे है आपस में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो 5 म्यू एफ बनाना, ये वाला और 6 म्यू एफ, ये दोनों सीरीज पे है। आखिर में पैरेलल कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करने के बाद, तो दोनों के ऊपर यहां पर कॉम्बिनेशन क्यू ही बनेगा, यहां पर क्यू ही बनेगा, ठीक है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन बनेगा सेम, ठीक है। तो यहां पर कैपेसिटेंस आ गया हम लोगों का, वोल्टेज भी पता है, तो ऑब्वियसली चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो फिर सी क्या होगा, सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस तो है, कितना है, इसका नेट है 30/11, 30/11 इंटू वोल्ट कितना है 24। अब इसको करोगे कितना आएगा, करीब करीब हम देख लेते हैं एक बार कैलकुलेटर, 30 इतना, ये करीब करीब हो जाएगा तुम्हारा 60, रुक जाओ एक सेकंड देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 65.5 ही आ रहा है, 65.5 ही आ रहा है म्यू तुम्हारा चार्ज इतना आ रहा है, हाँ कि ना। तुम लोग देख लो एक बार, कैलकुलेटर में देखना चाहते हो तो देख लो बेटा, तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्यू, ये फुल सर्किट के लिए, फुल सर्किट के लिए, पूरा सर्किट के लिए। तो यहां पर भी इतना ही होगा, यहां पर भी उतना ही होगा। तो फिर क्या बना हम लोगों का, Q/6 म्यू एफ। पहले वाला इसका एक वाला आंसर, इसका पहले वाला आंसर Q6 म्यू एफ, जो कि ये वाला है, इसके अंदर से कितना जा रहा है, इज इक्वल टू हम लोगों का 65.5 म्यू सी। एक बात हुआ, अब निकालना पड़ेगा ये दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर अभी नहीं निकाल पाएंगे, वोल्टेज वगैरह निकालना पड़ेगा। अभी वोल्टेज वगैरह के लिए खेल देख लेते, ये वाला हुआ। तो अब देखो बात क्या होता है, समझो मेरा बात को, समझो मेरा बात को। यहां से यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, लेट्स से इट्स V1, ओके। और यहां से यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना बोलते हैं, लेट्स से दिस इज V2, ओके। सो बना लेते हैं। तो अब वोल्टेज V1 V2 दोनों को ऐड करोगे तो बैटरी का वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। तो V1 V2 को वोल्टेज को ऐड करोगे तो बैटरी का वोल्टेज बनेगा। यहाँ पे चार्ज पता है, यहाँ पे V2 पता है, तो फिर V2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखो आराम से लिख सकते हैं, देखो V2 बनेगा, V2 इज इक्वल टू Q/C। हाँ सर, अब कौन सा वाला Q तो सेम ही है Q का, C का कौन सा वाला, C का 6 है। तो फिर बनाओ, इसका कितना था, इसका है 65.5 करीब करीब, और नीचे के साइड पे जाएगा 6 म्यू एफ। तो फिर ये कितना बन रहा है, ये मोटा मोटी बन के दिख रहा है, रुक जाओ एक सेकंड, ये कैलकुलेटर करके दिख रहा है। तो ये बन रहा है तुम्हारा 10.9 के करीब आ रहा है, ठीक है, 10.9 वोल्ट। तुम लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये वाला एकदम कर ही सकते हो, 10.9 के करीब आ रहा है। तो ये वाला पहले वाला आंसर बना हम लोगों का, दूसरा वाला वोल्टेज के लिए ये वाला आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। अब ये वाला बना। अब V1 को निकालने के लिए क्या करना है, V1 को निकालने के लिए, V1 कैसे निकालोगे, V1 विल बी इक्वल टू नथिंग बट वोल्टेज ऑफ द बैटरी माइनस V2, वोल्टेज ऑफ बैटरी BATT माइनस V2, यही करोगे ना, ये तो दोनों को ऐड करके बैटरी का ही आता है। तो ऑब्वियसली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, इस वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू 24 माइनस 10.9, ये तुम्हारा हो जाएगा करीब करीब 13.1, ये इज इक्वल टू 13.1 की तरफ होता है, 13.1 वोल्ट। तो V1 ये भी आ रहा है तुम्हारा, कितना आ रहा है 13.1 वोल्ट, ये भी हो गया, ठीक है। तो अब दोनों का वोल्टेज कितना है, अब यहाँ पे एक एक करके डाल के हम लोग निकाल लेंगे। वोल्टेज हो गया, तो अब क्या निकालेंगे, निकलना क्या है, Q ऑफ दिस वन 2 है यहाँ पे, 2 म्यू एफ। कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालेंगे, CV इज इक्वल टू C ऑफ 2 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज का ड्रॉप V1 है सर, इज इक्वल टू C ऑफ 2 कितना था, C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस दोनों का 2 म्यू एफ इंटू म्यू नहीं लिख रहे हैं, म्यू बना देंगे, ठीक है, इंटू कितना है, इंटू 10 नहीं 13.1, तो फिर इसका आंसर कितना बन रहा, 26.2 म्यू सी,
चार्ज हो गया, काम खत्म। म्यू लगा दिया, यहाँ पे म्यू था ना, सारे म्यू लगा दिया। तो फिर इसका 3 वाला म्यू एफ कितना होगा 3 का, तो 3 ही मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली 39.3 होगा ना, 39.9 ये वाला होगा। तो तुम्हारा ये वाला आंसर आया, ये वाला आंसर आया। बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया हम लोगों ने, ये वाला भी निकाल दिया, और चार्ज भी निकाल दिया हम लोगों ने, पूरे के पूरे चार्ज भी निकाल दिया, चार्ज और नीच कैपेसिटर भी निकाल दिया, पूरे के पूरे। देख लो, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। इससे अच्छा वाला सवाल शायद तुमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ऑब्वियसली एक ही चीज बाकी है, जो कि u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर करो ना, हाफ सी वी स्क्वायर करो, तो फिर बना दो, बैठा दो, काम खत्म करके, इज इक्वल टू हाफ इंटू सी है 65.5 इंटू 24 का स्क्वायर। ये तुम एकदम बना के कमेंट करो आंसर हम लोगों का, कमेंट, ठीक है ना, इसको करके तुम कमेंट करो, ठीक है। चलो तो फिर अगला वाला सवाल देख लेते, ठीक है ना, हो गया ये वाला भी। चलो और एक सवाल देख लेते, बढ़िया सा, एक पीपीसी लास्ट वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पीपीसी सवाल है, सी ऑफ चार्ज पीडी वोल्ट बैटरी कनेक्टर वगैरह कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो चेंज कर रहा है वही है कि डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। डी डैश इज इक्वल टू 3 इंटू डी, तो फिर कैपेसिटेंस क्या बनेगा, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो बनता है ना एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डैश, ए तो ए ही है, डिवाइडेड बाई डी डैश बनेगा, डी डैश क्या है 3d, तो फिर क्या हुआ, सी डैश इज इक्वल टू सी बाई सी नॉट बाई 3। बस काम खत्म, पहले वाला सवाल हो गया, न्यू कैपेसिटेंस डन। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या बनता है, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ क्या, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ ना, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू ई डैश ओनली, नो चेंज, क्योंकि नो चेंज, नो चेंज। तो फिर ये भी बना सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा पोटेंशियल देख लो, यहाँ पे तो सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट। ये वाला नीट में पूछा जा सकता है, सारे के सारे ये नीट लेवल का हो गया, ठीक है। ये वाला भी नीट लेवल हो गया, एकदम बढ़िया सा नीट लेवल, ये वाला भी नीट लेवल हो गया, ये वाला भी आंसर नीट लेवल हो गया, ठीक है, ये वाला। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनाओगे, पोटेंशियल का डिफरेंस v डैश इज इक्वल टू q डैश डिवाइडेड बाय c डैश, तो अब c में चेंज आया ना, तो ऑब्वियसली q डैश इज इक्वल टू q नॉट ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज किया है, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, q नॉट ही है, q तो सेम ही है ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय c डैश क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली c इंटू सी नॉट, क्या है c नहीं, c नॉट बाई 3, रुक जाओ, सी नॉट डिवाइडेड बाई 3, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऑब्वियसली क्या बना 3 इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी, तो फिर ये बना तुम्हारा, ये पूरा के पूरा है वी नॉट, वी नॉट, देयरफॉर हम लोग का क्या है, वी डैश इज इक्वल टू 3 इंटू वी नॉट। ये वाला दोबारा एक नीट लेवल का सवाल, दोबारा एक नीट लेवल का सवाल, ये वाला भी कर लिया, नीट ट्रिपल ही दी थी, नीट है, ठीक है, ये वाला भी हो गया हम लोग का, ये वाला भी हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या बनाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड U डैश इज इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2C, तो दोनों जगह पे यहाँ पे लगाओगे 2C का तो चेंज आ ही रहा है, इज इक्वल टू Q नॉट का ही स्क्वायर है, Q का कुछ चेंज नहीं हुआ है, 2 इंटू तुम्हारा C डैश हो गया, तो फिर यहाँ पे C नॉट डिवाइडेड बाई 3 ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू U नॉट, है ना, ये वाला भी सेम टू सेम नीट का सवाल। अब आखिर में है क्या, आखिर में जो सवाल है यहाँ पे फोर्स बिटवीन, ये भी करवा दिया, ये बन गया तुम्हारा जेई लेवल का, ये देखो ये बन गया तुम्हारा जेई लेवल का, ये एकदम बढ़िया सा बना जेई लेवल का, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा, फोर्स का यहाँ पे लगाओगे तो फोर्स का पता ही नहीं होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम दिखा देते, एक सेकंड में दिखा देते। फोर्स का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो U इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी लिखा है ना Q स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या है 2C, तो दोनों का फॉर्मूला बैठा हो यहाँ पे, Q का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, Q का फॉर्मूला C का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला बैठा हो, ये C होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D तुम्हारा, हाँ सर। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला कुछ चेंज वेंज नहीं करेंगे, ये वाला पे बैठा देते, तो U बना तुम्हारा U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाई D, हाँ सर ऊपर चला गया। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, अब ये वाला U के साथ फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, देखो अब कंजर्वेटिव फोर्स है ना ऑफ कोर्स, तो फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स इसका एनर्जी के अगेंस्ट होता है, क्योंकि वर्क डन के अगेंस्ट होता है, तो फिर F इंटू डी एक्स होता है,
तो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी बैठाओ इसका, और u का फॉर्मूला ये वाला जो है ना, ये वाला दोनों को जाके बैठाओ यहाँ पे, दोनों लगा के जोड़ जोड़ के, एक सेकेंड, तो दोनों को लगा के जोड़ोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखो आराम से ये ऊपर चला जाएगा, डी वी कटेगा ना ऑफ कोर्स, तो फिर एफ वाला फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा। एक सेकेंड, दूसरा वाला पेन ले लेते हैं, कौन सा वाला पेन ले, तो फिर एफ का ये वाला सवाल ले लेते हैं, नहीं ये वाला ले लेते हैं, तो फिर एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा ना, ऊपर चढ़ेगा ना ऑफ कोर्स, तो तुम्हारा क्या बन रहा है, क्यू स्क्वायर बाई तुम्हारा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, बस काम खत्म, ये वाला फॉर्मूला बन के आ रहा है, डीवी कट जा रहा है, ठीक है, तो यही वाला हो गया। तो फिर ये वाला तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स वाला फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन, बस। अब यहां पे देखो कोई भी चेंज है क्या, क्यू पे चेंज नहीं है, एप्सिलॉन नॉट पे चेंज नहीं है, क्यू पे चेंज नहीं है, एज ऑफ देयर इज नो चेंज, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नो चेंज, nothing change, everything is constant, therefore f dash will be equal to f naught। ये तुम्हारा सबसे अच्छा वाला सवाल, ये एकदम जेई के लेवल का था, ठीक है, एकदम जेई लेवल का था, बढ़िया काम खत्म कर दिया, पूरा के पूरा करवा दिया, इससे बढ़िया और कुछ क्लासेस हो नहीं पाएगा, इससे इतना कुछ करवाया, सारे के सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूलाज, पीवाईक्यूज ले लेके पूरा करवाया, बस बढ़िया से चलते, देखो एकदम देख लिया तो सारे के सारे चीज करवा दिया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, पीवाईक्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ करवा दिया, पूरा के पूरा 1 घंटा करीब लगा, तो फिर बढ़िया तुम तैयार हो गया नीट जेई का सवाल। इसके आगे जो आएगा वो इस पे सवाल करवाएंगे, पीवाईक्यूज जेई लेवल का, सीबीएसई का और नीट का बहुत सारे सवाल लेके आएंगे, डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाएंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, ऑब्वियसली अभी से लगातार वीडियो आता रहेगा, ऑफ कोर्स यू विल गेट प्लेंटी ऑफ कंटेंट, सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑफ कोर्स गिव इट subscribe if you liked it, and you can obviously ping for the notes and doubts, you can subscribe also, ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, चलो राजदीप सर साइनिंग ऑफ, चलो एकदम मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।